So hip joint is a multi-axial ball and socket synovial joint. Hip joint is a ball and socket of a type of synovial joint which is multi-axial. ठीक है, दूसरा कौन सा जॉइंट था जो मल्टी एक्सियल था? बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल जॉइंट. के अलावा बॉडी में और कौन सा दूसरा जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट टाइप है, मल्टी एक्सियल है? सिमिलर जॉइंट. वेरी गुड. शोल्डर जॉइंट, इट इज अ हाईली मोबाइल बट लेस स्टेबल. शोल्डर कैसे था? लेस स्टेबल. हिप जॉइंट कैसे होता है? हिप जॉइंट इज स्टेबल एज वेल एज मोबाइल, नॉट एज मोबाइल एज शोल्डर जॉइंट बट okay. Now we start the class. Hip joint, it is a multi-axial ball and socket type of synovial joint. It is a weight-bearing joint. Okay, it is a weight-bearing joint of the lower limb. This is a stable joint and also mobile. Okay, so it allows the shoulder joint, but the range of movement is restricted. Its movements are restricted. Now, how it is made up of? Hip joint में अगर hip joint पे क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द टाइप ऑफ द जॉइंट. These are the head type of the joint. Then its articular surfaces, head of the femur and acetabulum. Head of femur and acetabulum. Head of the femur. ठीक है. Shoulder joint में it is the head of this humerus, it is less than half a sphere. Here the head is more than half a sphere. Then acetabulum presents the horseshoe shaped lunate articular surface, acetabular notch and acetabular fossa. You'll see here. Then this one is acetabulum का articular surface of acetabulum. Then there is a gap between these two ends that is called acetabular notch, which is occupied by the transverse acetabular ligament. Transverse acetabular ligament. ठीक है. तो क्या क्या देखा हमने? ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस, देन एसिटाबुलर नॉच ब्रिज बाय ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, एंड देन दिस इज एसिटाबुलर फोसा. दिस वन इज एसिटाबुलर फोसा विच इज ऑक्युपाइड बाय फैट, एसिटाबुलर फैट. ठीक है. तो आर्टिकुलर सरफेसेस क्लियर होगा, क्लियर हो गई. फीमर साइड, the articulating surface is over the head of femur.
द हेड इज मोर देन हाफ अ स्पीयर. देन हिप बोन पे आर्टिकुलर सरफेस इज एसिटाबुलम का दिस ल्यूनेट शेप आर्टिकुलर सरफेस, इट्स एसिटाबुलर फोसा and this acetabular notch which is occupied by the which is bridged by the transverse acetabular ligament. ठीक है. Okay, so this is hip bone का this is acetabulum का this is acetabular, this lunate shape articular surface, this is acetabular notch and this one is acetabular fossa, and this one is head of femur. यहाँ तक क्लियर हो गया? कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया? अच्छा, चलो आगे बढ़े, भी फास्ट बढ़े. तो हमने देखा टाइप ऑफ द जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोइड जॉइंट विच इज मल्टी एक्सियल. देन द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर एसिटाबुलम और द हिप बोन. Acetabulum में the lunate articular surface, this acetabular fossa and this is acetabular notch which is bridged by transverse acetabular ligament, and this acetabular fossa में होता है fat, right? And this is articular surface for the head of femur. Head of femur here, this is articular surface over the head of femur. It is more than half a spear. ठीक है. Now the see here this articular surface जो है यहाँ पे एक depression है. This depression is called फोविया कैपिटिस. डिप्रेशन इज कॉल्ड फोविया कैपिटिस. फोविया मतलब डिप्रेशन एंड कैपिटिस मतलब हेड. तो हेड वाला जो डिप्रेशन होता है दैट इज फोविया कैपिटिस. यहाँ पे क्या अटैच होगा? लिगामेंट ऑफ फीमर. यहाँ पे क्या अटैच होता है? लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, जिसे हम लिगामेंटम टीरिस भी कहते हैं. लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिगामेंटम टीरिस. ठीक है. देन okay, now this hip joint as I told you this one is stable as well as mobile. ठीक है. this is unique in having a high degree of stability as well as mobility. तो stability क्यों होती है इसमें? it is a weight bearing joint. the stability is due to some factors. the first is this depth of acetabulum and the narrowing of its mouth by the acetabular labrum. ठीक है. तो acetabulum the stability is due to the depth of the acetabulum and the narrowing of its mouth by the acetabular labrum. ये जो आर्टिकुलर सरफेस होता है यहाँ पे अटैच होगा फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग. इसी शेप की ल्यूनेट शेप के ही फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पर अटैच होगी आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन्स पे. दैट इज एसिटाबुलर लेब्रम. ठीक है. जैसे ग्लिनॉइडल लेब्रम था वैसे यहाँ होता है एसिटाबुलर लेब्रम. ये क्या करेगा? जो एसिटाबुलर कैविटी है इसका डेप्थ इंक्रीज करेगा और जो ओपनिंग होगा इट विल नैरोअर द ओपनिंग ऑफ दिस एसिटाबुलर कैविटी. ठीक है. आगे वाले डायग्राम में देखते हैं. सी हियर यहाँ पे हिप जॉइंट है. कैन यू सी हियर ये जो ब्लू कलर में दिखाया है लाइट ब्लू कलर में दिस इज एसिटाबुलर लेब्रम. इट इज इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ एसिटाबुलर कैविटी. दिस वन सी हियर एसिटाबुलर लेब्रम इट इज फाइब्रो कार्टिलेजिनस and also it is narrowing the mouth of acetabular cavity to hold the head of femur in position. ठीक है. then tension and strength of the ligaments, जो इसके surrounding ligaments है, the tension and the strength of the surrounding ligaments. then strength and tone of the surrounding muscle. ठीक है. आपने कल gluteal region पढ़ा, फिर front of the thigh भी पढ़ा है. तो यहाँ पे जो सारी bulkiest muscle होती है they provide the strength to the joint. ठीक है.
देन अब ये हो गया और स्टेबिलिटी के लिए। इसकी मोबिलिटी की होती है, जॉइंट की मोबिलिटी इज ड्यू टू द लेंथ एंड ऑब्लिक्विटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। ठीक है, ये आप नेक ऑफ द फीमर सी हियर, अगर आपको ह्यूमरस याद होगा तो उसकी नेक कैसी होती है, शॉर्ट नेक होती है। यहाँ पे देखो फीमर का नेक कैसी है, इट इज लॉन्ग एंड ऑब्लिक। सो ड्यू टू दिस लॉन्ग एंड ऑब्लिक नेक this provides this feature provide the mobility to the joint। जो नेक शाफ्ट एंगल बन रहा है यहाँ पे, नेक और शाफ्ट का एंगल which is 120 to 125 डिग्री, this provide the mobility to the joint। ठीक है, then atmospheric pressure। so wide range of mobility is possible because of the fact that the femur has long neck with which is narrower than the equatorial diameter of the head। ठीक है, तो hip joint is a unique in which sense it is stable as well as mobile। stability is due to this acetabular labrum which increases the depth of acetabular cavity as well as narrows the opening of acetabular cavity। ठीक है, then second factor is surrounding ligaments, strength, the tension and the strength of surrounding ligament, then strength and tone of the surrounding muscles, and then atmospheric pressure। ये सारे factors for the stability, and the mobility is due to the long and oblique neck of femur, long and oblique neck of femur। ठीक है, हम देखते हैं लिगामेंट्स कौन सा होता है। लिगामेंट जो हो गए, पहले हमने आर्टिकुलर सर्फेसिस देखे, देन ग्लिनोइडल लेब्रम, सॉरी एसिटाबुलर लेब्रम हमने देखा। ठीक है, एसिटाबुलर लेब्रम है, यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है हमें, एक तो ये एसिटाबुलर लेब्रम दिख रहा है, देन ये नॉच इट इज ब्रिज बाय दिस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, दिस वन। देन कैन यू सी हियर दिस वन, दिस लिगामेंट, दिस इज राउंड लिगामेंट। इसके बहुत सारे नाम हैं, एक तो कहते हैं लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर, ऑल्सो राउंड लिगामेंट, लिगामेंटम कैपिटिस और लिगामेंटम टीरिस। तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिए हैं, आपकी बुक में जो नाम दिया है आप उसे फॉलो करो, बाकी के भी नाम याद रखो। ठीक है, सो इट इज लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ फीमर, राउंड लिगामेंट, लिगामेंटम टीरिस और लिगामेंटम कैपिटिस, लिगामेंटम कैपिटिस। ठीक है, दिस लिगामेंट। ओके, तो सबसे पहले हम सीक्वेंसली जाएंगे। सबसे पहले क्या मिलती है हमें लिगामेंट में, सबसे पहले हमें मिलेगी कैप्सूल। कोई भी जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले कैप्सूल। कैप्सूल का अटैचमेंट हिप पे, एसिटाबुलम पे, मार्जिन, आर्टिकुलर मार्जिन। ठीक है, देन फीमर वाला अटैचमेंट होगा कैप्सूल का एंटीरियरली ओवर दी इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। ये ग्रेटर ट्रोकैंटर है, ये लेसर ट्रोकैंटर है, इनके बीच की में जो लाइन फॉर्म हो रही है दैट इज इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। कौन सा पार्ट रिपीट करना है बेटा, कहाँ से ऑडिबल नहीं है? अब आ रही है आवाज? निकिता अब आ रही है आवाज? अच्छा, तो हमने क्या क्या देखा? हमने फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट, यहां तक क्लियर था? फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द हिप जॉइंट, राइट। उसके बाद
अब जो फैक्टर्स में था, पहले तो था ग्लिनोइडल लेब्रम, राइट, सी हियर दिस इज ग्लिनोइडल लेब्रम। उसके अलावा इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिख रहा है, दिस वन इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, दिस वन इज ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। नाउ दिस वन ये कट पार्ट ऑफ द सेम लिगामेंट, ये जो हेड ऑफ द फीमर है, यहाँ पे फोविया कैपिटिस है, फोविया कैपिटिस से लेके यहाँ पे जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है यहाँ तक ये जो जा रहा है बीच में से जिसे कट किया है, दिस लिगामेंट इज ligament of the head of femur, also called round ligament, also called ligamentum teres, also called ligamentum capitis. ठीक है, this ligament is ligamentum teres, ligamentum capitis, round ligament. This ligament is ligament of the head of the femur. ठीक है, तो ये हमें डायग्राम में ये सारी चीजें दिख रही है। जब हम सिक्वेंशली लिगामेंट पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी जॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। ठीक है, कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। तो कैप्सूल कहाँ पे अटैच होगी, एसिटाबुलम में आर्टिकुलर मार्जिन, देन सम पार्ट ऑफ द हिप बोन, दिस अबाउ द एसिटाबुलम, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे दिस पोर्शन। ठीक है, तो जो कैप्सूल का अटैचमेंट होगा इट एक्सटेंड सुपीरियरली, कैप्सूल अटैच टू द आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम एज वेल एज दिस ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, प्लस सुपीरियरली दिस अटैचमेंट एक्सटेंड ओवर द दिस बोन ओवर द एसिटाबुलर दिस लेब्रम, राइट। फीमर में कहाँ अटैच है, फीमर में दिस इज ग्रेटर ट्रोकैंटर, दिस इज लेसर ट्रोकैंटर, इनके बीच में लाइन होती है इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन, एंटीरियरली होगी इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन, पोस्टीरियरली होगी इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। मोबाइल से ही कर लेते हैं। Now audible? Now audible? Now audible? Echo आ रहा है। Now better? Now better? अब ठीक है, ठीक है। ओके, तो कहाँ आते हैं हम, कैप्सूल, राइट। तो कहाँ आते हैं हम, कैप्सूल से हियर द कैप्सूल anteriorly attach over the intertrochanteric line पे, फीमर पे कहाँ होगा, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन पे, posteriorly, ठीक है now see here, एंड ये posteriorly
see here, ये anterior view है, anterior surface, this is posterior surface of femur, and this one is this is greater trochanter, this is lesser trochanter, and this one is intertrochanteric crest. Posteriorly intertrochanteric crest. तो posteriorly capsule का attachment is in front of this intertrochanteric, 5 centimeter in front of intertrochanteric crest. sorry, it is 1 centimeter in front of sorry, it is 1 centimeter crest. in front of intertrochanteric crest. तो capsule attachment over the femur, तो capsule attachment over the femur, anteriorly it is attached over the intertrochanteric line, over the and posteriorly it is attached over 1 the centimeter in front neck, of intertrochanteric 1 centimeter in front of intertrochanteric ठीक है, crest. अटैचमेंट क्लियर हो गया. ठीक है, अटैचमेंट क्लियर हो गया. So capsule of the joint, capsule So capsule of the joint, attach over capsule the margins of acetabulum पे attach over the margins of articular surface. Superiorly this attachment extends over the bone above this acetabulum. Then below over the femur, the capsule attach. Then below over the femur, the capsule attach anteriorly over the intertrochanteric crest, and posteriorly over the neck of femur 1 centimeter in front of the intertrochanteric crest. अटैचमेंट होगा. कैप्सूल के बाद हमने कौन से लिगामेंट, कैप्सूल का अटैचमेंट होगा. कैप्सूल के बाद हमने कौन से लिगामेंट्स देखे थे ये वाले डायग्राम में. एक तो लिगामेंटम, then स्टीरिस लिगामेंटम कैपिटिस, then acetabular labrum, ligament, then transverse acetabular ligament. ठीक है. ligaments of the hip joint, first is capsule. Ligaments of the hip joint, first is capsule. Capsule lined by synovial membrane, transverse acetabular labrum, and ligament transverse of the head acetabular of the ligament, and ligament of the head of the femur. अलावा 3 ठीक है, ligaments इतने हमने लिगामेंट देखे. iliofemoral इसके अलावा ligament, 3 लिगामेंट्स होते हैं. इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, एंड इस्चियोफीमोरल इलियम से लिगामेंट. फीमर तक इलियोफीमोरल, इलियम से फीमर तक आने वाला, प्यूबोफीमोरल क्यूबिक बोन से फीमर तक आने वाला, एंड इस्चियोफीमोरल इस्चियम से फीमोरल तक आने वाला. ठीक है, हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. इन तीनों पार्ट से जो फीमर तक आने वाले लिगामेंट हो गए वो ये 3 लिगामेंट. बाकी के बाद साइनोल आसान है. कैप्सूल, कैप्सूल के बाद साइनोल मेम्ब्रेन हर जॉइंट में होता है. देन एसिटाबुलर लेब्रम, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल एंड इस्चियोफीमोरल. ये क्वेश्चन इन्यूमरेट में आता ही है. ठीक है, इन्यूमरेट द लिगामेंट्स ऑफ हिप जॉइंट, इन्यूमरेट द लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट. ये क्वेश्चन इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही. याद रहेगा. ठीक है, लिगामेंट याद रहेगा. 6 लिगामेंट. साइनोवल मेम्ब्रेन एडिशनल एक, साइनोवल मेम्ब्रेन एडिशनल एक. ठीक है, कैप्सूल होती है. उसके अलावा कैप्सूल लाइन ठीक है, कैप्सूल होती है. उसके अलावा कैप्सूल लाइन बाय साइनोवल मेम्ब्रेन, एसिटाबुलर लेब्रम, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, प्यूबोफीमोरल एंड इस्चियोफीमोरल. इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल एंड इस्चियोफीमोरल. ठीक है, तो सी हियर this one is ठीक है. acetabular, So see here, this one is acetabular, this one is capsule, capsule of the hip joint. रेड डॉट में दिखाया है, Then ये जो रेड डॉट में दिखाया है, this is synovial membrane. The synovial membrane also covers the fat in the acetabular. The synovial membrane also covers the fat in the acetabular fossa. Then these are the retinacular arteries. आपने जो फीमर पढ़ा होगा, Then these are the retinacular arteries. आपने जो फीमर पढ़ा होगा उसमें आपने retinacular arteries पढ़ी होगी. These retinacular arteries, these are the branches from medial and lateral circumflex femoral artery. Medial and lateral circumflex femoral artery. These are the branches of profunda femoris artery. Lateral circumflex and medial circumflex. लेटरल सर्कमफ्लेक्स एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स. ये जो आर्टरी होती है ये टोकेंटर के अराउंड एनास्टोमोस होती है. फिर ये इस एनास्टोमोसिस से कुछ ब्रांचेस निकलती है
जो सप्लाई करेगी नेक ऑफ फीमर. दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड रेटिनाकुलर ब्रांचेस. ठीक है, दिस ब्रांचेस आर रेटिनाकुलर ब्रांचेस. नाउ सी हियर दिस रेटिनाकुलर ब्रांचेस, दे आर पियर्सिंग द कैप्सूल, दे आर इंट्राकैप्सुलर. They are going inside the capsule and supplying the neck of femur. So these branches are intracapsular. ठीक है, तो हमारे लिगामेंट्स में अब आगे ठीक है, इलियो, हमारे लिगामेंट्स में अब आगे है इलियोफीमोरल लिगामेंट. Iliofemoral ligament. So now see here this ligament from this ilium, this anterior inferior iliac spine, this anterior superior, this is anterior inferior iliac spine, from here up to the femur. This ligament is Iliofemoral ligament. It is Iliofemoral ligament. Y-shaped. It is Y-shaped. It is inverted Y-shaped. Also called ligament of Bigelow. It is also called ligament of Bigelow. This ligament from anterior inferior iliac from spine up to the anterior inferior iliac spine up to the trochanterus and intertrochanteric line. This inverted Y-shaped ligament. This inverted Y-shaped ligament also called ligament of supports Bigelow. the capsule anteriorly. ठीक है, it supports the capsule anteriorly. उसे जो कैप्सूल होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे प्रोवाइड होगी? सराउंडिंग लिगामेंट. जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे प्रोवाइड होगी? सराउंडिंग लिगामेंट से. एंटीरियरली ये स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलियोफीमोरल लिगामेंट. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी. इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड इन द स्टैंडिंग पोस्चर. लिगामेंट, ठीक है, दिस लिगामेंट, इसके बारे में हम क्या क्या याद रखेंगे? इलियोफीमोरल लिगामेंट, इसके बारे में हम क्या क्या याद रखेंगे, क्या क्या लिखेंगे एग्जाम में? It is anteriorly, it is strengthening the capsule anteriorly. It is inverted Y-shaped ligament, also called ligament of Bigelow. It's superiorly attached to the anterior superior iliac spine. Inferiorly it has two stems, two bands. Y के दो band होते हैं. This upper band attached over the greater trochanter and lower one attached to the intertrochanteric line. The upper one attached over the greater trochanter as well as anterior half of this intertrochanteric line, and the remaining part of intertrochanteric line, it is get attached by the this lower band of iliofemoral ligament. ठीक है, इतना भी याद नहीं रहा तो जो अपर पार्ट इट इज अटैच ओवर द anterior inferior iliac spine and the lower part attached over the intertrochanteric line. क्या लिखना है ठीक जरूरी है, है? इसके अलावा इसमें क्या लिखना है जरूरी है? इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी. इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड इन द स्टैंडिंग पोस्चर. This ligament prevents the trunk from falling. This ligament prevents the trunk from falling backward in the standing posture. Right? Right? Now see here, this part is pecten Now pubis. see here, this part is ठीक है, ये pecten pubic bone pubis. है, this pubic bone, ठीक है, ये superior pubic ramus. bone है. This This part pubic is bone, pecten. superior ramus. This part is pecten Iliopubic eminence pubic. होता है यहाँ पे. Iliopubic eminence होता है यहाँ पे. Iliopubic eminence. ठीक है, pecten तो यहाँ pubis से and एक ligament iliopubic आएगा eminence. towards the तो यहाँ से एक lower band ligament आएगा of towards the Iliofemoral lower band ligament. of This ligament Iliofemoral is called ligament. pubofemoral ligament. This ligament is called pubofemoral ligament. also So pubofemoral ligament also anteriorly strengthen support the capsule anteriorly, strengthen the capsule anteriorly. attach the The upper end, it is attached the iliopubic eminence. iliopubic Inferiorly, eminence, it merges with the and inferiorly it merges with the lower band capsule of iliofemoral as well as ligament. with the lower band of iliofemoral ligament. So this ligament supports Okay. the So strengthen the this capsule ligament anteriorly. This supports the pubofemoral strengthen the capsule support the anteriorly. This anteriorly as well as pubofemoral inferiorly. support the capsule anteriorly as well as inferiorly. Okay. Okay. Pubofemoral ligament supports the strengthen the Pubofemoral capsule ligament anteriorly as well as supports the strengthen the capsule anteriorly as well as inferiorly. अपने बुक की डायग्राम, अपने बुक की डायग्राम, इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन,
इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, स्पाइन, यहाँ से दो बैंड्स एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से दो बैंड्स आ रहे हैं इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन पे, इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, लोअर बैंड देन इलियोप्यूबिक एमिनेंस से लोअर बैंड ऑफ आ रहा है प्यूबोफ्यूमरल लिगामेंट, इलियोफ्यूमरल तक ये आ रहा है प्यूबोफ्यूमरल लिगामेंट। इन दोनों दिस वन इज प्यूबोफ्यूमरल लिगामेंट। इन दोनों के बीच में यहाँ होता है बर्सा। इट एक्ट्स लाइक अ कुशन। ठीक है, बर्सा क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ कुशन, प्रिवेंट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। Then posterior view, posterior view में then posterior view में ischial spine, this is ischial spine, ischial spine, this is ischial spine, this is greater trochanter, then intertrochanteric line, this is greater trochanter, and this ligament is ischio, and this ligament is ischio-femoral ligament. The joint posteriorly, ischio-femoral ligament covers the joint posteriorly, extends the joint. It is a weak ligament. It supports the joint capsule posteriorly. From the ischium to the extend from the ischium to the trochanter. ग्रेटर ट्रोकैंटर। ये इश्चियम से लेके ये एसिटाबुलम वाला पार्ट है, ये इश्चियम से लेके ये एसिटाबुलम वाला पार्ट है, यहाँ तक ये लिगामेंट एक्सटेंड होगा और लोअर डाउन इट अटैच ओवर द ग्रेटर। इश्चियोफेमोरल लिगामेंट सपोर्ट्स द जॉइंट पोस्टीरियरली। इश्चियोफेमोरल लिगामेंट सपोर्ट्स द जॉइंट पोस्टीरियरली। एक्सटेंड फ्रॉम द इश्चियम अप टू द एसिटाबुलम। अपर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द इश्चियम अप टू द एसिटाबुलम। एक्सटेंड फ्रॉम द इश्चियम अप टू द एसिटाबुलम। एक्सटेंड फ्रॉम द इश्चियम अप टू द एसिटाबुलम and this lower end attach over the greater trochanter. ठीक है, this is about the ligaments of the joint. ठीक है, this is about the ligaments of the joint. तो कौन से लिगामेंट थे? कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, एसिटाबुलर लिगामेंट, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, एसिटाबुलर लेब्रम, लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, इलियोफेमोरल, इश्चियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल सपोर्ट द जॉइंट and the capsule anteriorly. Pubofemoral supports the capsule inferiorly also, and ischio-femoral supports the joint posteriorly. Relation of the hip joint. रिलेशन के पहले हम रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट। अब रिलेशन के पहले हम जो सराउंडिंग मसल्स होती है हिप जॉइंट के सराउंडिंग जो मसल्स होती है वो देखेंगे। हिप जॉइंट इमेजिन करो, हिप जॉइंट के आगे एंटीरियरली जो फ्रंट ऑफ थाई होता है वहाँ कौन सी मसल्स होती है? क्वाड्रिसेप्स, फेमोरिस, उसमें होगी रेक्टस फेमोरिस, वास्टा, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, ये सारी एंटीरियरली है, एंड सार्टोरियस, ये सारी एंटीरियरली है। देन जो फ्लोर फॉर्म करती है इसका फेमोरल ट्रायंगल का दैट इज इलियोसोआस, ठीक है, एंड पेक्टिनियस मसल, ये सारी एंटीरियरली आएगी। पेक्टिनियस मसल ये सारी एंटीरियरली आएगी। ओरिएंटेशन एंटीरियरली आएगी ये सारी मसल। पोस्टीरियरली क्या आएगा? पोस्टीरियरली हिप जॉइंट क्या आएगा? पोस्टीरियरली हिप जॉइंट के पोस्टीरियरली 3 बल्कियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है जो जॉइंट के सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों आएगा, सुपीरियरली भी और पोस्टीरियर। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। तीन जो बल्कियस मसल होती है ये सुपीरियर एंड पोस्टीरियर पूरा एस्पेक्ट कवर करेगी हिप जॉइंट। मिनिमस को हटाएंगे, ठीक है, फिर जब हम मिनिमस को हटाएंगे तो हमें नीचे छोटी छोटी मसल्स दिखती है। कौन सी है? एक तो दिखती है पायरिफॉर्मिस, उसके बाद कल की क्लास में हमने पढ़ा पायरिफॉर्मिस। उसके बाद में क्या है? ऑब्चुरेटर इंटरनस विद 2 जेमेलाई, क्वाड्रेटस फेमोरिस। सबसे पहले ग्लूटियस ये सारी मसल होती है रीजन का जब हम डिसेक्शन करते हैं, सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियल रीजन का जब हम डिसेक्शन करते हैं सबसे पहले हम क्या हटाते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस के बाद को हटाएंगे, मीडियस, फिर मिनिमस। मिनिमस को हटाएंगे हमें दिखती है पायरिफॉर्मिस की मसल। नीचे पायरिफॉर्मिस के ऑब्चुरेटर इंटरनस, नीचे हमें मिलेगी ऑब्चुरेटर इंटरनस विद 2 जेमेलाई। नीचे मतलब उसके नीचे मिलेगी क्वाड्रेटस फेमोरिस, नीचे मतलब बिलो, क्वाड्रेटस, ठीक है, डीपर नहीं बिलो, क्वाड्रेटस फेमोरिस। और एक कौन सी नर्व मिलती है यहाँ पे? मोटी सी जो नर्व होती है थिकेस्ट नर्व। ग्लूटियल रीजन में थिकेस्ट नर्व कौन सी होती है? ग्लूटियल रीजन में थिकेस्ट नर्व कौन सी होती है? वेरी गुड, इट इज द शियाटिक नर्व।
ठीक है, sciatic Very nerve good. and It is gluteal sciatic vessels. nerve. ठीक है, sciatic nerve and gluteal vessels. artery and veins. Superior inferior ठीक gluteal है, बाद में छोटी छोटी artery नर्व्स and होती है, now veins. to quadratus femoris, ठीक now है, to बाद में छोटी obturator छोटी नर्व्स होती है, internus. now to quadratus ये सारी femoris, now to gluteal obturator ligament पढ़ी होगी internus. ये सारी Femoral में याद gluteal करो, ligamental पढ़ी होगी आपने. femoral में याद करो, femoral triangle में हमने कौन सी vessels पढ़ी थी? vein, femoral, femoral artery, femoral vein, femoral major nerve. vessels. And now ठीक है, major vessels. And now मीडियल कंपार्टमेंट में आते हैं. मीडियल अब कंपार्टमेंट क्या है? मीडियल कंपार्टमेंट में आते हैं. मीडियल कंपार्टमेंट क्या है? एडक्टर मसल्स है, ग्रेसालिस है, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस एंड ग्रेसालिस मीडियल कंपार्टमेंट में है. लेटरली कौन सी है? टेंसर फेशिया लेटरली टेंसर फेशिया लाटा. टेंसर फेशिया लाटा. ठीक है, अब एक डायग्राम देखेंगे हम. ठीक है, अब एक डायग्राम देखेंगे हम. इसको समझने की कोशिश करो. चौरसिया की डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करो. यहाँ दिखाया है हिप जॉइंट. दिस थिंग इज हिप एसिटाबुलर. जॉइंट. दिस थिंग इज एसिटाबुलर. दिस इज एसिटाबुलर आर्टिकुलर सरफेस. दिस इज एसिटाबुलर लेब्रम. कैप्सूल. देन ये डॉटेड जॉइंट कैप्सूल. एंटीरियर पार्ट. दिस इज पोस्टीरियर. दिस इज एंटीरियर पार्ट. दिस इज posterior. This is superior and this one is inferior. नोसियन जॉइंट के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है? जॉइंट के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है? इंटीरियरली क्या क्या दिखेगा हमें? sartorius, iliopsoas, femoral artery, femoral vein, then femoral nerve, femoral artery, femoral vein, pectineus. और इनके आगे होगी जैसे रेक्टस ठीक फेमोरिस है, और इनके आगे होगी जैसे रेक्टस फेमोरिस है, इन्हीं के साथ में आगे होगी हमारी 3 वास्टा. ठीक है, एंटीरियर रिलेशन क्लियर हो गया इस डायग्राम में. ये डायग्राम समझना थोड़ा सा मुश्किल है. थोड़ा इमेजिन करो, हिप जॉइंट को इमेजिन करो, उसके सराउंडिंग मसल्स को इमेजिन करो तो आसान हो जाएगा. मसल्स हैं जो भी स्ट्रक्चर्स है उसके. हिप जॉइंट के आगे ठीक है, क्या है? हिप जॉइंट के आगे क्या क्या है? फ्लोर जो फीमर ट्रायंगल का फ्लोर जो फॉर्म कर रहा है इलियोसोआस. उसके अलावा पेक्टिनियस. वाली मसल सार्टोरियस. उसके अलावा उसके आगे वाली मसल सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरिस एंड 3 वास्टा. वेसल्स, मेजर वेसल्स, femoral वेसल्स एंड femoral nerve. एंटीरियर रिलेशन में आ गई. सोआस मेजर के साथ जो बरसा होता है. अरे इलियोसोआस मेजर के साथ जो बरसा होता है, दिस वन इज बरसा ऑफ द सोआस मेजर मसल. पोस्टीरियरली सुपीरियरली सबसे पहले सुपीरियरली सबसे पहले क्या होगी? ग्लूटियस मैक्सिमस, और फिर उसके बाद ग्लूटियस मीडियस और फिर ग्लूटियस मिनिमस. सुपीरियर रिलेशन में आ गई मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस. अब ये पीछे एक्सटेंड होगी, बल्कियस मसल है, पीछे एक्सटेंड होगी. पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा? ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और इसके नीचे पायरिफॉर्मिस, उसके नीचे ऑब्चुरेटर, इंटरनस विद 2 जेमेलाई और इसके नीचे क्वाड्रेटस फेमोरिस. ग्लूटियल रीजन एंड शियाटिक नर्व. ये सारे ग्लूटियल रीजन की मसल आ गई. शियाटिक नर्व, ये सारे ग्लूटियल रीजन की मसल आ गई. पोस्टीरियर रिलेशन में, इंफीरियर रिलेशन में क्या आएगा? इंफीरियर रिलेशन में क्या आएगा? मीडियल साइड में आती है एडक्टर मसल्स एंड ग्रेसालिस. मीडियल कंपार्टमेंट की मसल एडक्टर लॉन्गस, ग्रेसालिस, ब्रेविस एंड मैग्नस हैमस्ट्रिंग मसल. प्लस इंफीरियरली हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी आपकी अगली क्लास. क्या आएगा? हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी आपकी अगली क्लास में. हैमस्ट्रिंग मसल का नाम आपने सुना होगा सेमी मेम्ब्रानोसिस. हैमस्ट्रिंग मसल का नाम आपने सुना होगा सेमी मेम्ब्रानोसिस, सेमी टेंडिनोसिस. फेमोरिस मसल. देन बाइसेप फेमोरिस मसल. बोन पड़े थे तब और उसके अलावा हमने जब बोन पड़े थे तब और उसके अलावा हमने पढ़ा होगा बाद में जब मैंने पढ़ाया था तब ये मसल पढ़ा होगा. बाद में जब मैंने पढ़ाया था तब भी ये मसल्स के नाम आए थे. फिबुला में सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रानोसिस एंड बाइसेप फेमोरिस मसल. दिस मसल्स आर हैमस्ट्रिंग मसल्स. ठीक है, तो इंफीरियर रिलेशन में हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड एडक्टर मसल्स. ठीक है, इंफीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा?
ठीक है। इंफीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा? कंपार्टमेंट की मसल, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ मीडियल कंपार्टमेंट की मसल, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल हैमस्ट्रिंग मसल। रिलेशन में एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल, एंटीरियर रिलेशन में एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल, रिलेशन में ग्लूटेल रीजन की मसल, और पोस्टीरियर रिलेशन में ग्लूटेल रीजन की मसल, और सुपीरियर रिलेशन में ग्लूटेल रीजन की 3 मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस। आगे होती है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, आगे होती है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड फीमोरल नर्व, और पीछे होगी ग्लूटेल नर्व्स होती है पीछे, मेजर नर्व्स में से, बाकी ग्लूटेल नर्व्स होती है पीछे। ठीक है, रिलेशन क्लियर है? ठीक है, रिलेशन क्लियर है। मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट, मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट, हिप जॉइंट के मूवमेंट में फ्लेक्शन, हिप जॉइंट के मूवमेंट में एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। जैसे शोल्डर जॉइंट की थी, सारा मोबिलिटी ज्यादा है, सारी मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। सॉरी, so axis of movement pass through the center of, so axis of movement pass through the center of head of femur, जो फोविया कैपिटिस होता है उसके थोड़ा ऊपर। एक्सटेंशन होगा along the transverse axis, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा along the transverse axis, abduction adduction along the anteroposterior axis, and medial and lateral rotation along the vertical axis, and circumduction is the combination of all the movements। ठीक है, अब आप मसल्स बता सकते हो। फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल होगी? मसल्स बता सकते हो, फ्लेक्शन के लिए कौन सी मसल होगी? एंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल, फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल, नी जॉइंट तक, नी जॉइंट तक सरफेस होता है वो क्या नी जॉइंट तक जो एंटीरियर सरफेस होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सर सरफेस होता है। एक्सटेंसर सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है? एक्सटेंसर सरफेस। नी जॉइंट के नीचे जो एंटीरियर सरफेस होता है वो क्या हो जाएगा? चलो वो हम बाद में देखेंगे उसको, अभी आप वो हम बाद में देखेंगे उसको। अभी आप इतना बताओ, फ्लेक्शन कौन सी हिप जॉइंट का फ्लेक्शन? एंटीरियर सरफेस की मसल करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल कौन सी होती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल सार्टोरियस, वेरी गुड, सोआस मेजर, वेरी गुड महिमा, वेरी गुड, सोआस मेजर, वेरी गुड महिमा, यस, रेक्टस फ्यूमोरिस, विशाली, यस, रेक्टस फ्यूमोरिस, इलियोसोआस पेक्टिनियस जो फ्लोर फॉर्म कर रही थी, इलियोसोआस पेक्टिनियस जो फ्लोर फॉर्म कर रही थी, फ्लोर के ऊपर थी रेक्टस फ्यूमोरिस, तो मेजर और उसके अलावा सार्टोरियस। तो मेजर मसल ऑफ फ्लेक्शन इज इलियोसोआस। मेजर मसल इलियो फ्लेक्शन के लिए जो मेजर मसल्स होती है, मेजर मसल फ्लेक्शन के लिए जो मेजर मसल्स होती है, चीफ मसल्स, लिजार, सोआस मेजर मसल एंड इलियाकस मसल। उसके अलावा एक्सेसरी मसल्स में पेक्टिनियस, रेक्टस फ्यूमोरिस एंड एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए हमने जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की 3 मेजर मसल के लिए हमने जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की 3 मेजर मसल मीडियस एंड मिनिमस रीजन की, उसमें से ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। उसमें से मैक्सिमस क्या करती है? एक्सटेंशन। एबडक्शन। मीडियस एंड मिनिमस क्या करती है? एबडक्शन। एक्शन ये याद रखना। मैक्सिमस का मीडियस और मिनिमस एक्शन इज दोनों का एक्शन एक्सटेंशन, मीडियस और मिनिमस का दोनों का एक्शन इज एबडक्शन। मिनिमस और मीडियस का साक्षी मिनिमस और मीडियस का साक्षी एबडक्शन। मसल इज ग्लूटियस, चीफ एक्सटेंसर मसल इज ग्लूटियस जो हमें मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। उसमें जो हमें हैमस्ट्रिंग मसल्स अगली बार आप जब पढ़ोगे तो उसमें क्लियर होगा। हैमस्ट्रिंग मसल्स क्या करती है? एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। देन एडक्शन, एडक्शन कौन करेगा हिप जॉइंट का? देन एडक्शन, एडक्शन कौन करेगा हिप जॉइंट का? हिप जॉइंट का एडक्शन सारी एडक्टर्स करेगी। हिप जॉइंट का एडक्शन एडक्टर लॉन्गस सारी एडक्टर्स करेगी। एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस एंड मैग्नस। एडक्टर मसल्स अभी बताया मैंने। एबडक्शन कौन कर रहा है? मेजर एबडक्शन अभी बताया मैंने। एबडक्शन कौन कर रहा है? मेजर एबडक्टर्स आर मीडियस एंड मिनिमस। ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। वेरी गुड। ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है। देन मीडियल रोटेशन,
देन मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, मीडियल रोटेशन के लिए टेंसर फेशियल, मीडियल रोटेशन के लिए एंड ग्लूटियस, टेंसर फेशियल आटा मिनिमस के एंड एंटीरियर ग्लूटियस, मीडियस एंड मिनिमस के एंटीरियर फाइबर्स। फेशियल आटा, इतना याद रखो। मीडियल रोटेशन के लिए टेंसर फेशियल आटा, इतना याद रखो। मीडियल रोटेशन, टेंसर फेशियल आटा, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन के लिए सारी लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन के लिए सारी जो छोटी छोटी मसल्स थी, छोटी मसल मिली थी, मिनिमस को हटाने के बाद जो हमें छोटी छोटी मसल मिली थी, वो सारी क्या करेगी, पायरिफॉर्मिस ऑब्चुरेटर प्लस 2 जेमेलाई एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये सारी मसल क्या करती है, लेटरल रोटेशन। आपने कल मसल पढ़ी थी उसमें मैक्सिमस, ग्लूटल रीजन में जो आपने कल मसल पढ़ी थी उसमें मैक्सिमस इज एक्सटेंसर, मीडियस, मिनिमस एंड मीडियस एब्डक्टर with 2 gemelli, पायरिफॉर्मिस ऑब्चुरेटर with 2 जेमेलाई प्लस क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये लैटरल रोटेटर्स। रखोगे तो ज्यादा ठीक है, इसका ऐसे कंबाइन आप याद रखोगे तो ज्यादा आसान। मीडियस एंड मिनिमस, मैक्सिमस क्या करती है, एक्सटेंशन, मीडियस एंड मिनिमस क्या करती है, एब्डक्शन, मसल है ग्लूटियस, और उसके बाद में सारी जो छोटी छोटी मसल है ग्लूटियस, ग्लूटियल रीजन की ऊपर से पहले पायरिफॉर्मिस, उसके नीचे आती है ऑब्चुरेटर इंटरनस प्लस 2 जेमेलाई और उसके नीचे आएगी क्वाड्रेटस फीमोरिस। ये सारी मसल एक साथ क्या करती है, लेटरल रोटेशन ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है, ठीक है। और एक चीज क्वाड्रेटस फीमोरिस अलग है, और एक चीज क्वाड्रेटस फीमोरिस अलग है और क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस अलग है। क्वाड्रिसेप्स मतलब हेड्स, फोर हेड्स, क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रेटस मतलब उसका क्वाड्रेंगुलर शेप होता है। ठीक है, ये चीज भी याद रखो। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फ्लेक्शन, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फ्लेक्शन एंटीरियर मसल्स करेगी, उसमें से मेजर मसल इज इलियोपsoas मसल। ये क्या करती है, इलियोपsoas मसल। ये क्या करती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मेन मसल इज ग्लूटियस मैक्सिमस, एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस एंड एडक्शन, एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस एंड मैग्नस, मिनिमस, एब्डक्शन, ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, medial rotation tensor fascial lata and lateral rotation pyriformis, obturator internus plus 2 gemelli and quadratus femoris। combination of all circumduction में combination of all the movements। ठीक, आगे बढ़े, कुछ रिवाइज करना है अब तक का, आगे बढ़े, कुछ रिवाइज करना है अब तक का। So now supply is So by the now supply is by the surrounding surrounding nerves। तो आगे ना होती है हमारी femoral nerve, and now to पीछे होगी gluteal nerves and now to quadratus femoris and anterior division of obturator nerve medial compartment। Anterior compartment, posterior gluteal region and this medial compartment, medial compartment, anterior compartment femoral nerve, medial compartment obturator nerve region की and superior gluteal nerves and gluteal region की nerve, superior gluteal nerves and quadratus femoris। this obturator nerve supplies This the hip obturator joint as well nerve, as this knee obturator nerve supplies the hip joint as well as knee joint को भी joint। सप्लाई करती है and knee obturator joint को nerve भी होती है hip joint को भी सप्लाई करती है and knee joint को भी सप्लाई करती पैथोलॉजी है। होती है तो अगर hip joint में कोई भी that will result पैथोलॉजी in होती pain है in knee joint also, तो that will result in pain in knee joint also and that type of pain is called referred pain। pathology ठीक है, or So, any disease in the hip pathology joint will cause pain or in any the knee disease in joint the hip also, joint will and cause that pain type in of the pain knee is joint called also referred pain, and that it is type due of to the pain is common called supply referred pain of the and it both is the due to joint the common and that supply common nerve is of the both the obturator joint nerve. and that common nerve is Obturator nerve obturator of medial nerve। compartment। And obturator nerve is a nerve of ठीक। medial compartment। ठीक, artery again obturator artery again gluteal region की obturator artery, inferior gluteal arteries, gluteal region की superior and inferior gluteal arteries, anterior compartment की circumflex arteries, femoral medial and lateral circumflex femoral artery। ठीक है, anterior compartment की medial and lateral ठीक है, circumflex anterior compartment की femoral artery, medial and lateral circumflex femoral artery, medial compartment की obturator artery and medial gluteal compartment की region obturator artery inferior and gluteal region की superior and inferior gluteal arteries। then neck is supplied by the Then neck is supplied by the retinacular branches, retinacular branches। This retinacular branches they are intracapsular
ये हमने देखा था अभी। सप्लाई बाय दिस ऑब्चुरेटर जॉइंट सप्लाई बाय दिस ऑब्चुरेटर ग्लूटियल आर्टरी, उसकी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, उसकी ब्रांचेस। सप्लाई देन नेक बाय दिस सप्लाई ब्रांचेस फ्रॉम दी by this retinacular branches from the circumflex femoral ये क्यों arteries। इम्पोर्टेंट है, ये क्यों हम पढ़ रहे दो बार? ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसका क्यों हम applied पढ़ रहे आएगा दो बार? बिकॉज इसका अप्लाइड आएगा अभी आगे। सो अप्लाइड में नॉर्मल दिस नेक शाफ्ट एंगल, सो अप्लाइड में नॉर्मल दिस नेक शाफ्ट एंगल जो होता है 125 डिग्री, दैट इज 120 to 125 डिग्री इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स एंड 160 डिग्री इन चिल्ड्रन। एंगल होता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल नेक शाफ्ट एंगल होता है वो कितना होता है 125 to 120 to 125 डिग्री एंड इन चिल्ड्रन 160 shaft angle is reduced. condition where the neck shaft angle is reduced, that condition is called coxa vara। ठीक है, and the condition where the neck shaft angle is ठीक है, increased, and the condition that where the condition neck is shaft called angle is coxa increased, valga. that condition is called coxa valga। नेक शाफ्ट एंगल कब डिमिनिश होता है, कब रिड्यूस नेक होता शाफ्ट है? एंगल कब डिमिनिश होता है, कब रिड्यूस होता है? नेक ऑफ फीमर, इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेक ऑफ फीमर। जो नेक और हेड होता है जो फीमर का, इसका नेक और हेड होता है फीमर का, इसका अगर जब डिस्ट्रक्शन होगा, डैमेज होगा, शाफ्ट एंगल क्या होता है? उस वक्त क्या होता है? नेक शाफ्ट एंगल क्या होता है? डिमिनिश होता है। दिस ऑब्जर्व्ड इन पर्थिस डिसीज। पर्थिस डिसीज, ठीक है, पर्थिस डिसीज, femoral head undergoes in children avascular necrosis in children due to trauma। हमने देखा था femoral head retinacular arteries होती है, तो अगर वहाँ पे ट्रॉमा होता है उसकी वजह से जो retinacular artery होगी वो डैमेज होगी, उसकी वजह से क्या होगा? avascular necrosis of the femoral head। It is observed in children। It is seen in children between 5 to 10 years। It is seen in children age between 5 to 10 years। ठीक है, क्या होता है? जो नेक शाफ्ट एंगल होता है, इसमें क्या होता है? जो नेक शाफ्ट एंगल होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। क्या होगा? नेक शाफ्ट एंगल, ठीक है, इसमें क्या होगा? नेक शाफ्ट एंगल जो होगा देन वो इंक्रीज होगा। वन मोर कंडीशन, देन वन मोर कंडीशन is congenital dislocation of hip joint। इस congenital dislocation of hip joint। मतलब ये भी क्या ठीक है, होगा? congenital dislocation है, मतलब ये भी क्या होगा? ये भी चिल्ड्रंस में होगा। Below 5 years, ये भी चिल्ड्रंस में होगा। इसमें क्या होता है? Below 5 years। कैप्सूल, इट इज इसमें क्या होता है? हमने देखा था कैप्सूल, इट इज एंटीरियरली सपोर्टेड बाय इलियोफेमोरल प्यूबोस्टीरियरली सपोर्टेड बाय प्यूबोफेमोरल, पोस्टीरियरली सपोर्टेड बाय इस्चोफेमोरल लिगामेंट। का सुपीरियर जो सुपीरियर पार्ट होता है कैप्सूल का, सुपीरियर पार्ट इट इज वीक। क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो फीमर का हेड होता है इट इज डिसलोकेटेड सुपीरियरली ओवर द ग्लूटियल सरफेस। गर्ल्स मोस्टली अकर इन गर्ल्स। कंजेनाइटल डिसलोकेशन में क्या होगा? जो सुपीरियर पार्ट होगा कैप्सूल का, इट इज अ वीक पार्ट, फ्रॉम हियर द फीमोरल हेड डिसलोकेटेड ऑनटू द ग्लूटियल सरफेस। ठीक है, ठीक है। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। फ्रैक्चर जो होगा ये 3 टाइप का फ्रैक्चर जो होगा ये 3 टाइप का फ्रैक्चर है। सब कैपिटल विच इज नियर दी हेड, सर्वाइकल विच इज द मिडल ऑफ द नेक, एंड बेजल विच इज नियर दी ट्रोकैंटस। ठीक है, जो नेक का फ्रैक्चर होता है एक तो कहाँ पे होगा? नियर दी हेड, सब एक तो नियर दी हेड, सब कैपिटल जस्ट बिलो दी हेड, सर्वाइकल इन द मिडल ऑफ नेक, then cervical in the middle of neck, cervical means neck, and basal near the trochanter, near the base of neck। कैपिटल होता है इट इज इंट्राकैप्सुलर, जो सब कैपिटल होता है इट इज इंट्राकैप्सुलर, it is seen in elderly people over the 60 years, and it is more common again in females because osteoporosis जो होता है वो ज़्यादा which is common in females, so this fracture of neck of femur is also seen more commonly females,
मोरली ठीक है। मोर तो जब ये कॉमनली फ्रैक्चर सीन होगा, फीमेल्स। जब फ्रैक्चर नेक ठीक है, ऑफ फ्यूमर तो होता जब भी है फ्रैक्चर होगा, उसमें भी क्या जब होगा, फ्रैक्चर नेक ऑफ फ्यूमर होता है तो उसमें भी क्या होगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ठीक ऑफ है। ये रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज होगी, उसकी वजह से ठीक है, ये रेटिनाकुलर आर्टरी डैमेज होगी, उसी की वजह से तीन टाइप से एवेस्कुलर फ्रैक्चर नेक्रोसिस ऑफ ऑफ नेक ऑफ फ्यूमर के सब कैपिटल, तीन टाइप से फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फ्यूमर के सब कैपिटल, मिडल ऑफ द नेक एंड नियर द हेड, सर्वाइकल इन द मिडल ऑफ द नेक एंड बेसल नियर द ऑस्टियोआर्थराइटिस अगेन डिसीज ऑफ ओल्ड एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगेन डिसीज ऑफ ओल्ड एज, आर्टिकुलर एंड्स, यहाँ ऑस्टियोफाइट सीन एट द आर्टिकुलर एंड्स causing painful and limited ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एट द आर्टिकुलर इसमें क्या होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स दिखते हैं एट द आर्टिकुलर एंड्स, which causes painful and limited movements. It is seen in old age. एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में जो होता है, जो यंग एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में जो होता है that is it is due to the fracture trauma, of due to the trochanter. injury, It is due to the trauma, due to the injury. कॉमन होता है फ्रैक्चर ऑफ ट्रोकैंटर्स, ग्रेटर ट्रोकैंटर और लेसर ट्रोकैंटर जो होते हैं। फ्रैक्चर इज कॉमन इन एडल्ट्स। That trochanteric fracture is common in चिल्ड्रन में adults. कौन से दिखेगा, कंजेनाइटल डिसलोकेशन, चिल्ड्रन में कौन से दिखेगा, कंजेनाइटल डिसलोकेशन, देन पर्थिस डिसीज दिखेगा, कॉक्सा वैरा, कॉक्सा वेल्गा, ये सारे दिखेंगे। देन ओल्ड एज में दिखेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फ्यूमर, एंड एडल्ट्स में दिखेगा फ्रैक्चर ऑफ ट्रोकैंटर्स। तो जब फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे में हम कैसे उसे, तो जब फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे में हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं। दिस वन ये नॉर्मल एक्सरे है, दिस वन इज एसिटाबुलम, दिस इज प्यूबिस, दिस इज इस्चियम, दिस इज एसिटाबुलर फोरामेन, नेक ऑफ फ्यूमर, हेड ऑफ फ्यूमर, ग्रेटर ट्रोकैंटर, नेक ऑफ फ्यूमर, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर। तो नॉर्मल एक्सरे में जब हम तो नॉर्मल एक्सरे में जब हम ऑब्चुरेटर फोरामेन के ऊपर से, यहाँ से ऑब्चुरेटर फोरामेन के सुपीरियर मार्जिन से जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस लाइन इज कंटिन्यूअस विद द लोअर मार्जिन ऑफ नेक ऑफ फ्यूमर। then a margin drawn from the drawn from the superior border, upper border of the obturator foramen. lower margin of the neck. It is continuous with the lower margin of the neck of femur. This line is called Shenton's line. This is called Shenton's line. जो दो चीजें हैं अंजलि, ये जो दो चीजें हैं आर्थराइटिस का ही टाइप है, बट उसके कॉजेज अलग है। एक में वायरल होता है और एक में एक में वायरल होता है और एक में ऑस्टियोफाइट्स होता है। The Shenton's line is curved line. The Shenton's line is in a radiograph. Curved line in a radiograph where the upper border of the obturator foramen is continuous with the lower margin of the neck of femur. अगर डिसलोकेशन होता है यहाँ पे, अगर डिसलोकेशन होता है यहाँ पे, जॉइंट का अगर डिसलोकेशन होगा ऊपर नीचे पोस्टीरियरली कहीं भी जहाँ पे डिसलोकेशन होगा तो ये जो लाइन होगी ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पोस्टीरियरली डिसलोकेशन होता है कंजेनाइटल, अगर पोस्टीरियरली डिसलोकेशन होता है कंजेनाइटल जो डिसलोकेशन होगा हिप जॉइंट में, इसमें तो ये ग्लूटियल सरफेस पे आएगा, सुपीरियर डिसलोकेशन होता है। कंडीशन है, बट अगर ट्रॉमेटिक अगर कंडीशन है उसके वजह से अगर डिसलोकेशन हो रहा है तो दैट इज कॉमन पोस्टीरियर। एक्वायर्ड डिसलोकेशन है तो अगर एक्वायर्ड डिसलोकेशन है तो कॉमन पोस्टीरियर। जब पोस्टीरियर डिसलोकेशन होगा हेड ऑफ फ्यूमर का तब क्या होता है, sciatic nerve injury। ठीक, हिप जॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हिप जॉइंट हिप जॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हिप जॉइंट आप हिप जॉइंट कौन से हेड्स में कवर करोगे? लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में टाइप ऑफ द जॉइंट, आर्टिकुलर सरफेसेस, देन कैप्सूल ऑफ द जॉइंट, then ligaments of the joint, then factors stabilizing responsible for the stability of the joint and mobility of the joint. This joint is a weight bearing joint, ठीक है? This joint is a weight bearing joint. then locomotion के स्टेबल होना जरूरी है, then locomotion के लिए हमें इसमें mobility भी ज्यादा कवर करने हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आपको कवर करने हैं। वो एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद में रिलेशंस, वो एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसमें आपको रिलेशंस बताने हैं, सुपीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, बाद में मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट, मसल्स रिस्पांसिबल फॉर द बताओगे, मूवमेंट्स, मसल्स रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट्स, एस्पेक्ट, देन अप्लाइड एस्पेक्ट। ठीक है, देन अब आते हैं हम इसका एक्सरे भी, देन अब आते हैं हम इसका एक्सरे भी।
ठीक है, एक्सरे देख लिया, नॉर्मल एक्सरे। ठीक है, एक्सरे देख लिया, नॉर्मल एक्सरे। लाइन हमने देखी थी पहले, सेंटेंस लाइन हमने देखी थी पहले, हुआ है या नहीं ये जो हम देखते हैं डिस्लोकेशन हुआ है या नहीं ये देखने के लिए हम ये सेंटेंस लाइन देखते हैं नॉर्मल एक्सरे में। और क्या क्या दिखता है हमें नॉर्मल एक्सरे में? क्या क्या दिखेगा? लंबा वर्टिब्रे, दिस इज सेक्रम। लंबा वर्टिब्रे, दिस इज सेक्रम। इलियम, दिस जॉइंट इज sacroiliac joint. This joint is sacroiliac joint. Then anterior superior iliac spine. Then anterior superior iliac spine. Then this one is acetabulum. Then this one is acetabulum. Femur. This is head of femur. This is neck of femur. Hip joint. Then This greater is neck of femur. lesser trochanter. Then greater trochanter and shaft. lesser trochanter. Shaft. Here ischial tuberosity. Here ischial tuberosity. Ramus of pubis. Then inferior ramus of pubis. This is superior ramus of pubis. This is pubic symphysis. This one is fovea capitis. This one is fovea capitis. Then here greater sciatic notch. Then here greater sciatic notch. Anterior, sorry, यहाँ में मैंने गलत बताया था. This is anterior sorry, यहाँ में मैंने गलत बताया था. This is anterior superior iliac spine and this one is anterior inferior iliac spine. ठीक है, एक्सरे आया तो रीड कर पाओगे. ठीक है, बोनी लैंडमार्क्स. एक्सरे आया तो रीड कर पाओगे. बोनी लैंडमार्क्स. चलो यहाँ देखते हैं हम क्या क्या दिख रहा है. चलो यहाँ देखते हैं हम क्या क्या दिख रहा है. उसका स्पाइन. फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा. देन यहाँ पे देखो उसका स्पाइन. ये फेंट आउटलाइन है. देन यहाँ पे देखो ये फेंट आउटलाइन है. यहाँ पे सेक्रम का गैसेस दिख रही है. ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको गैसेस दिख रही है. ये जो ब्लैक कैविटीज. रेडियोल्यूशन शैडोज. रेडियोल्यूशन शैडोज. मे बी सिग्मॉइड का होगा. सिग्मॉइड को मे बी सिग्मॉइड का होगा. इसके अलावा सेक्रम. सेक्रम के बाद इसके अलावा सेक्रम के बाद आते हैं इलियम. इलियम और सेक्रम के बीच में दिस जॉइंट इज sacroiliac joint. इलियम का दिस इज इलियाक क्रेस्ट. देन इलियम का दिस इज इलियाक क्रेस्ट. स्पाइन. एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन. एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन. दिस इज acetabulum. दिस इज ischial tuberosity. acetabulum के बाद दिस इज ischial tuberosity. Superior ramus. Inferior ramus. This is superior ramus of pubis. Pubic bone. This one is pubic bone. This is pubic symphysis. यहाँ पे greater sciatic notch होना चाहिए. यहाँ पे greater sciatic notch होना चाहिए. Head of femur. Fovea Head of femur. Neck of femur. Fovea capitis. This is greater trochanter. Neck of femur. Lesser trochanter. This is greater trochanter. यहाँ पे lesser trochanter. This is lesser trochanter. Line. Intertrochanteric line. Femur. Shaft of the femur. ठीक है. This is about the X-ray. So this is about the X-ray. चलो. ठीक है. चलो. The class here. Stop the class here.